انقلاب زندہ باد، انقلاب زندہ باد، انقلاب زندہ باد۔ برصغیر جنوبی ایشیا میں بھگت سنگھ انقلاب کا استعارہ ہے۔ اس خطے میں آزادی اور انقلاب کی داستان اس نام کے بغیر نامکمل ہے۔ 9 دہائیاں گزرنے کے بعد بھی بھگت سنگھ کے نام سے اس خطے کے حکمران خوف زدہ ہیں اور اس کی جدوجہد کو تاریخ کے اوراق سے غائب کرنے کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے۔ بہت سے حکمرانوں نے اس کے نظریات کو مسخ کرنے کی بھی کوشش کی ہے اور اسے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا ہے۔ برطانوی سامراج کے خلاف عزم بغاوت بلند کرنے والے اس 23 سالہ نوجوان کو حکمرانوں نے 1931 میں 23 مارچ کو پھانسی پر چڑھا دیا، لیکن اس کی جدوجہد اور نظریات آج بھی زندہ ہیں۔ بھگت سنگھ کا نام اس پورے خطے کے لاکھوں انقلابی نوجوانوں کے دلوں کی دھڑکن ہے، لیکن آج یہ جاننا ضروری ہے کہ حکمران اس نوجوان سے کیوں خوفزدہ رہتے ہیں۔ آخر کون تھا بھگت سنگھ؟ آئیے اس نوجوان انقلابی کے بارے میں جانیں۔ بھگت سنگھ 28 ستمبر 1907 کو لائل پور موجودہ فیصل آباد کے ایک نواحی گاؤں میں پیدا ہوا۔ بھگت سنگھ کا خاندان خاص طور پر چچا اور والد انقلابی نظریات کی طرف مائل تھے اور برطانوی راج سے ہندوستان کو آزاد کرانے کی جدوجہد میں غدر پارٹی کے پلیٹ فارم سے سرگرم عمل تھے۔ ایسے خاندان میں پیدا ہونے کی وجہ سے بچپن ہی سے بھگت سنگھ باغی سوچ رکھتا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب برصغیر پر انگریزوں کا قبضہ تھا۔ مقامی افراد میں اس قبضے کے خلاف نفرت بڑھتی جا رہی تھی اور عوامی تحریکیں ابھر رہی تھیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ سامراجی حکمرانوں کا جبر بھی بڑھتا جا رہا تھا۔ پہلی عالمی جنگ کے دوران برطانوی سامراج نے اس خطے کو بے دردی سے لوٹا اور اپنے جبر کی انتہا کر دی۔ 10 لاکھ کے قریب سپاہیوں نے برطانوی فوج میں ان حکمرانوں کے مفادات کے لیے حصہ لیا اور قربانیاں دی۔ اس کے علاوہ برطانوی فوج کو رسد مہیا کرنے کے لیے خوراک سے لے کر کپڑے جوتے کی فراہمی کے لیے یہاں پر لوٹ مار کی انتہا کر دی گئی۔ اس دوران یہاں بھوک اور بیماری انتہاؤں کو پہنچ گئی، جبکہ لاکھوں لوگ قحط سالی اور وباؤں کے ہاتھوں مرنے لگے۔ اسی باعث عوامی نفرت کا لاوا ابلنے لگا اور انقلابی تحریکیں ابھرنے کے امکانات نظر آنے لگے۔ 1917 کے دوران روس کے سوشلسٹ انقلاب نے بھی انقلابیوں کے لیے امید کی ایک کرن روشن کی اور انہیں آزادی کی جدوجہد کے لیے ایک نیا رستہ دکھایا۔ انگریز اس صورتحال میں بکھلائے ہوئے تھے اور انہیں اقتدار ہاتھ سے نکلتا دکھائی دے رہا تھا۔ اس صورتحال میں انہوں نے جبر کی انتہا کر دی۔ پہلی عالمی جنگ سے قبل مقامی سیاستدانوں سے وعدہ کیا گیا تھا کہ اگر وہ جنگ میں برطانیہ کا ساتھ دیں گے تو جنگ میں کامیابی کے بعد برطانیہ ہندوستان کو آزاد کر دے گا، لیکن جنگ میں کامیابی کے بعد جبر میں کئی گنا اضافہ کر دیا گیا اور بدنام زمانہ رولٹ ایکٹ نافذ کیا گیا۔ اس جبر کے خلاف ایک ملک گیر عوامی تحریک ابھری جس کو کچلنے کے لیے انگریزوں نے تاریخ کا بدترین جبر استعمال کیا۔ 1919 میں امرتسر میں جلیانوالہ باغ میں ہونے والے قتل عام اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی جس میں عوامی تحریک کو کچلنے کی کوشش کی گئی تھی۔ 13 اپریل 1919 کو جلیانوالہ باغ میں جنرل ڈائر کے حکم سے 2000 کے قریب بے گناہ افراد کو بیساکھی کے میلے کے دن قتل کر دیا گیا، جبکہ ہزاروں افراد زخمی ہوئے، ان میں عورتیں، بچے اور بوڑھے بھی شامل تھے۔ اس قتل عام کے چند گھنٹے بعد 12 سالہ بھگت سنگھ بھی اس مقام پر پہنچا اور جلیانوالہ باغ کا خونی منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا، جہاں ہر طرف لاشیں بکھری پڑی تھیں اور زخمی درد سے بلک رہے تھے، لیکن ان کی مرہم پٹی کی کسی کو اجازت نہیں تھی۔ اس قتل عام کے بعد تحریک ختم ہونے کی بجائے مزید پھیل گئی اور ملک گیر سطح پر احتجاجوں کا دائرہ کار وسیع ہو گیا۔ پورے ملک میں لاکھوں نوجوان اس میں شامل ہوئے، جبکہ منظم مزدور تحریک کا باقاعدہ آغاز بھی اسی عرصے میں ہوا اور ہڑتالوں کا سلسلہ وسعت اختیار کرتا گیا۔ اس تحریک کی قیادت گاندھی کر رہا تھا، جو خود اس تحریک کے حجم اور پھیلاؤ سے خوفزدہ ہو گیا تھا۔ ہندوستان کا مقامی سرمایہ دار طبقہ مزدوروں اور کسانوں کے تحریک میں شمولیت سے ڈر گیا اور انگریزوں سے چند مراد کے حصول کے وعدے پر 1922 میں عوامی تحریک کو ختم کر دیا گیا۔ مقامی سرمایہ داروں کی نمائندگی گاندھی کر رہا تھا، جو محنت کش طبقے کا ازلی دشمن تھا۔ ان تمام واقعات کے بھگت سنگھ کے شعور پر بہت گہرے اثرات مرتب ہوئے۔ ایک طرف جہاں گاندھی کی غداری نے اس میں غم و غصے کو مزید بھڑکایا، وہیں آزادی کے حصول کے لیے اس کی درست نظریات کی پیاس بھی بڑھتی چلی گئی۔ 1923 میں بھگت سنگھ نے نیشنل کالج لاہور میں داخلہ لیا تو یہاں اس کی ملاقات انقلابی سوچ رکھنے والے نوجوانوں سے ہوئی۔ یہاں سے بھگت سنگھ کی عملی سیاسی جدوجہد کا آغاز ہوا۔ بھگت سنگھ نے کالج میں نوجوان بھارت سبھا بھی قائم کی اور پھر ہندوستان ریپبلکن ایسوسی ایشن کا حصہ بنا۔ یہ تنظیم انگریزوں سے آزادی حاصل کرنے کی جدوجہد کر رہی تھی۔
इस तंजीम में इस वक्त के नामी ग्रामी अफराद मौजूद थे, जिनमें चंद्र शेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल और इशफाकुल्ला खान शामिल थे। भगत सिंह इस तंजीम का सरगर्म मेंबर था और इंतहाई कम वक्त में वो तंजीम की क़ियादत में शामिल हो गया। इस दौरान भगत सिंह मुख्तलिफ अखबारात के लिए मज़ामीन भी लिखता रहा और नौजवानों में इसकी मकबूलियत बढ़ने लगी। इसी खौफ से मई 1927 में बरतानवी रियासत ने इसे चंद हफ्तों के लिए झूठे मुकदमे में गिरफ्तार भी किया। 1928 में बरतानवी हुकूमत के बनाए गए साइमन कमीशन के खिलाफ एक दफा फिर मुगीर एहतजाज शुरू हो गए। इस कमीशन ने हिंदुस्तान की सियासी सूरत हाल पर रिपोर्ट तैयार करनी थी, लेकिन इसमें एक भी मुकामी शख्स शामिल नहीं था। लाहौर में इस एहतजाज की क़ियादत मशहूर मजदूर रहनुमा लाला लजपत राय कर रहे थे। एहतजाज के दौरान पुलिस के सुपरिटेंडेंट जेम्स स्कॉट के हुक्म पर मुजाहिरीन पर लाठीचार्ज किया गया, जिससे लाला लजपत राय भी जख्मी हुए और बाद अज़ां इनकी हलाकत हो गई। इस दौरान भगत सिंह HRA में सरगर्म था और मार्क्सिज्म के इनकलाबी नजरियात से रूशनास हो चुका था। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया भी मुल्क में सरगर्म हो चुकी थी और तंजीम साजी का आगाज कर चुकी थी। इसके अलावा पूरे मुल्क में मजदूरों की हड़तालों और एहतजाजों का सिलसिला भी जारी था। इस सूरत हाल में भगत सिंह ने भी अपनी तंजीम को वाज़ेह तौर पर सोशलिस्ट नजरियात के तहत मुनज़्ज़म करने का फैसला किया और 1928 में अपनी तंजीम की कांग्रेस के इजलास में तजवीज़ पेश की कि इसका नाम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन रखा जाए। इस तजवीज़ को मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर करते हुए HSRA के नाम से बाकायदा काम का आगाज किया गया। अब आज़ादी के मुतालिक भी इसके नजरियात तब्दील हो गए और वो एक सोशलिस्ट इनकलाब के जरिए पूरे निज़ाम के खात्मे की बात करने लगा। इस हवाले से राजकुमार संतोषी की फिल्म द लेजेंड ऑफ भगत सिंह का एक सीन इसकी शानदार इक्कासी करता है। इस दौरान इन्होंने अपनी तंजीम को वसीतर अवामी परतों तक ले जाने का फैसला किया और इसके लिए लाला लजपत राय के कत्ल का बदला लेने का मंसूबा बनाया गया। इसमें जेम्स स्कॉट की जगह इसका असिस्टेंट जॉन सैंडर्स कत्ल हुआ। इसी तरह असेंबली में अवाम दुश्मन कवानीन के खिलाफ एहतजाज करते हुए बम फेंकने का मंसूबा भी बनाया गया, जिसका मकसद सिर्फ एहतजाज करना था और इसमें कोई भी जख्मी या कत्ल नहीं हुआ था। बम फोड़ने के बाद इनके पास फरार होने का मौका था, लेकिन इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हुए इन्होंने खुद गिरफ्तारी दे दी। इनका मकसद मुकदमे की समाअत के दौरान अपने नजरियात का प्रचार करना था, ताकि अखबारात और रसायल के जरिए इन नजरियात को अवाम की वसी परतों तक पहुँचाया जा सके। इस दौरान भगत सिंह इनकलाबी नजरियात का मुतालिया भी करता रहा और इसने अहम नताइज अखज़ किए जो उसकी तहरीरों में वाज़े हैं। वो आखिरी वक्त तक मार्क्स के अलावा इनकलाबी रूस के कायदीन लेनिन और ट्रॉट्स्की की किताबों का भी मुतालिया करता रहा। अदालत में अपने मुकदमे के दौरान भगत सिंह और इसके साथियों ने अपने बयानात से मंसूबे के मुताबिक अपने नजरियात का भरपूर प्रचार किया। इसके अलावा जेल में 116 दिन की साथियों समेत भूख हड़ताल भी इसकी जद्दोजहद का अहम हिस्सा है, जिसका मकसद सियासी कैदियों को इनके हकूक दिलवाना था। इस भूख हड़ताल ने इसकी मकबूलियत को पूरे हिंदुस्तान में फैला दिया, जहां अंग्रेजों के खिलाफ नफरत पहले ही भड़क रही थी और अवामी तहरीकें मुनज़्ज़म हो रही थीं। इसके बाद जितना अरसा वो जेल में रहा, उसकी शोहरत में तेजी से इजाफा होता चला गया, यहाँ तक कि एक वक्त आने पर लोगों ने अपने खून से दस्तखत करके भगत सिंह और इसके साथियों की रिहाई का मुतालबा तक किया। इस वक्त भगत सिंह की शोहरत गांधी से भी ज्यादा हो गई थी, जिससे वायसराय समेत तमाम सियासी लीडर और हुक्मरान खौफजदा थे। गोरे हुक्मरान अवामी रद्द-ए-अमल से इंतहाई डरे हुए थे। इससे पहले वो रूसी इनकलाब देख चुके थे, लिहाजा वो भगत सिंह के सियासी नजरियात की वजह से इसे रहा करने से भी घबराते थे। दूसरी तरफ भगत सिंह का मुकम्मल आजादी का नारा गली मोहल्लों में गूंज रहा था। इससे सिर्फ बरतानवी साम्राज्य ही नहीं, बल्कि मुकामी सरमायादार और इनके नुमाइंदे नेहरू और गांधी भी खौफजदा थे। इसीलिए वो सब चाहते थे कि जल्द ही भगत सिंह का खात्मा हो जाए। इस सूरत हाल में मुकदमे को गैर मामूली तेजी से तयशुदा अंजाम तक पहुंचाया गया, जिससे अदालती कार्रवाई का धोखा और फरेब अवाम पर मजीद वाज़ेह हो गया। बिल आखिर मुकर्रर करदा तारीख से एक दिन पहले ही अंग्रेज हुक्मरानों ने रात की तारीकी में भगत सिंह और इसके साथियों सुखदेव और राजगुरु को फांसी के फंदे पर लटका दिया। फांसी के बाद इनकी नाशों को नामालूम मुकाम पर तल्फ करने की कोशिश की गई, लेकिन इसमें इनको कामयाबी ना मिल सकी। इस फांसी के बाद अवामी तहरीक में मजीद शिद्दत आ गई और बरतानवी साम्राज्य के खिलाफ मुल्क गिर अवामी तहरीक भड़क उठी, जिसमें भगत सिंह के हौसले और जुर्रत ने नया वलवला पैदा कर दिया था। नौजवानों और मेहनत कशों में सोशलिस्ट नजरियात भी मकबूलियत हासिल करने लगे और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को भी अवामी हमायत मिलना शुरू हो गई। इससे मुकामी सरमायादार तबका और अंग्रेज हुक्मरान मजीद खौफजदा हो गए। इन अवामी तहरीकों में कम्युनिस्ट पार्टी को क़यादत के मुताद्दिद मौके मिले, लेकिन सोवियत यूनियन की स्टालिनिस्ट ज़वाल पजीरी के बाइस ऐसा मुमकिन ना हो सका।
इसी बाइस भगत सिंह का मुत्तहिदा हिंदुस्तान में सोशलिस्ट इनकलाब का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर ना हो सका और बरतानवी साम्राज्य के कठपुतली हुक्मरान और सरमायादाराना निजाम यहाँ के अवाम पर मुसल्लत रहा। इसी निजाम के तहत बनी हुई रियासतें, वही अदालती निजाम, वही कवानीन, वही मालियाती निजाम और अवाम पर इन्हीं साम्राज्यों के गुमाश्ता हुक्मरान आज भी अवाम पर जबर जारी रखे हुए हैं। लेकिन आज 90 साल गुजरने के बाद भी भगत सिंह के नजरियात नौजवानों के लिए मशले राह हैं। इसके अधूरे ख्वाब की तामील आज भी नौजवानों को पुकार रही है। आज के तमाम मसाइल का हल सरमायादाराना निजाम के मुकम्मल खात्मे से जुड़ा हुआ है, जो इस पूरे खित्ते से भूख, नंग, बीमारी, महरूमी, अजियत और जंगों का खात्मा करेगा और यहाँ के अवाम को हकीकी आजादी दिलाएगा। भगत सिंह इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाकर फंदे पर झूल गया और अपने नजरियात को अमर कर गया। भगत सिंह ने कहा था कि सोशलिज्म के बगैर आजादी का मतलब ये होगा कि गोरे हुक्मरानों की जगह बुरे हुक्मरान ले लेंगे और मजदूरों और किसानों की जिंदगियां वैसी ही रहेंगी। आज भी सरहद के इस पार और उस पार मुट्ठी भर हुक्मरानों का सारी दौलत पर कब्जा है। आज सोशलिस्ट नजरियात दोबारा सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में तेजी के साथ फैल रहे हैं। सरमायादाराना निजाम अपनी तारीख के बदतरीन बहरान का शिकार है और मेहनत कशों पर इस बहरान का सारा बोझ गिरा रहा है। हिंदुस्तान से लेकर अमेरिका तक हर कोने में अवामी तहरीकें जारी हैं। आज एक ऐसी इनकलाबी पार्टी बनाने की जरूरत है जो इन तमाम तहरीकों को आपस में जोड़े और सरमायादाराना निजाम के खात्मे और सोशलिज्म के लिए जद्दोजहद को तेज करे। भगत सिंह के नजरियात का जामे इजहार इसके जेल के आखिरी दिनों में लिखे गए मजमून, जिसका उन्वान नौजवान सियासी कारकुनों के नाम था, में होता है। भगत सिंह ने इस मजमून में अपनी जद्दोजहद का निचोड़ बयान किया है, जो आज भी इन नौजवान इनकलाबियों के लिए मशले राह है। इस मजमून में उसने वाज़े किया कि चंद एक मुसल्ला कार्रवाइयों या एहतजाजों से इनकलाब नहीं आता, बल्कि इसके लिए दुरुस्त साइंसी नजरियात पर एक मुसलसल जद्दोजहद करते हुए एक मुनज़्ज़म इनकलाबी कुव्वत तामीर करने की जरूरत होती है। यही वजह है वो खुद भी सारी जिंदगी इन नजरियात को सीखने की कोशिश करता रहा। अपनी फांसी से कबल वो लेनिन की किताब रियासत और इनकलाब का मुतालिया कर रहा था, जो इनकलाबी कुव्वतों के लिए अहम तरीन किताबों में से एक है। फांसी के तख्ते पर चढ़ते वक्त वो तीनों दोस्त बिस्मिल अजीम आबादी का मशहूर गीत गा रहे थे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये गीत पूरे खित्ते में इनकलाबी कुव्वतों का नारा बन चुका है और आज तकरीबन एक सदी गुजरने के बाद भी मकबूल आम है। जेल में अपने आखिरी दिनों के दौरान भगत सिंह के लिखे गए अल्फाज में जज्बातियत को छोड़ दो, हकाइक का सामना करने के लिए तैयार हो जाओ। इनकलाब एक मुश्किल काम है। इनकलाब करना किसी एक शख्स का काम नहीं, ना ही इसे किसी मुकर्रर करदा तारीख पर लाया जा सकता है। ये समाजी और माशी सूरत हाल की वजह से बनने वाले मखसूस हालात में ही लाया जा सकता है। एक मुनज़्ज़म इनकलाबी तंजीम का काम इन मखसूस हालात में जन्म लेने वाले मौक़ों को दुरुस्त अंदाज में इस्तेमाल करना होता है और अवाम को इनकलाब के लिए तैयार करना और कुव्वतों को मुनज़्ज़म करना एक इंतहाई मुश्किल काम है। इसके लिए इनकलाबियों से बहुत बड़ी कुर्बानियों की जरूरत होती है। मैं ये बात वाज़ेह करता चलूं, अगर आप एक कारोबारी आदमी हैं या फिर घर बार वाले आदमी, तो बराए मेहरबानी इस आग से मत खेलें। पार्टी को आप जैसे लीडर की जरूरत नहीं है। हमारे पास ऐसे बहुत सारे लीडर पहले से मौजूद हैं जो शाम को 2-3 घंटे निकाल कर तकरीरें करने आ जाते हैं। ये कचरा है। हमें लेनिन के बकौल प्रोफेशनल इनकलाबियों की जरूरत है, ऐसे कारकुनों की जो सारा वक्त तंजीम को दें और जिनकी इनकलाब के अलावा और कोई उमंग या ख्वाहिश ना हो। जितनी ज्यादा तादाद में ऐसे कारकुन होंगे, कामयाबी के मौके इतने ज्यादा होंगे। इनकलाब